Morning, dear kids. We are taking our same topic, that is trigonometrical functions. Let's see this problem. It says if ABC are the angles of triangle, then you have to prove that cos C is equal to minus cos A plus B. Okay, so if these three are the angles of triangle, so can I write angle A plus B plus C is equal to 180? Yes, my dear kids. Yes. As per the requirement, I need A plus B on one side and C on one side. So can I write C is equal to 180 minus A plus B? Multiply cos on both sides because I need cos. Clear with this? Now my dear kids, cos C, I'll keep it as it is. And do you know that we have, in my previous video we have done, if you have cos 180 minus theta will be equal to minus cos theta. Do you remember that? Do you remember that? Because 180 minus theta will be in your second quadrant, and in your second quadrant only sine and cosec are positive. Rest are all negatives. ठीक है. और मैंने कहा था जो हमारे रेशियोज हैं वो हम लोग के कन्वर्ट हो जाएंगे, लाइक साइन कॉस बन जाएगा. ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी? जब 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा है. बाकी सब में आपका कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, सब रेशियो सेम रहेंगे. तो ओनली डिफरेंस विल बी द साइन. So cos 180 minus theta is equal to minus cos theta. So can I write minus cos A plus B? Okay, hence proved. Okay, next we have ABCD are the angles of quadrilateral. Prove that half AB, A plus B, plus half A plus B plus cos half C plus D is equal to 0. Now, as we know, these are the angles of quadrilateral. So, can I write A plus B plus C plus D is equal to 360? As per the requirement, I'll need A plus B on my right hand side. So, can I take C plus D? Sorry, I need A plus B on my left hand side. So, can I take C plus D over there? Now, as per the requirement, I need cos half. So, multiply cos half on both sides. Correct with this? Okay. I'll keep this as it is. And this will be cos 180 half, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो this will be 180 minus C plus D. हाफ ये इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, तो यहाँ पे भी मैं हाफ लगाऊंगी. Are you getting my point? So that will be cos half A plus B is equal to, now you know very well that cos 180 minus theta is minus cos theta. So can I write minus cos half C plus D? Getting my point? If you want to write it here, because cos 180 minus theta is equal to minus cos theta. Now if you take this on this side, you will get cos half A plus B plus cos half C plus D is equal to 0. Hence proved. Clear? Okay, our next problem is, if theta is given as minus 1000 degree, determine the sign of sine theta minus cos theta. My dear kids, you have to find sine theta minus cos theta. Okay? Sine theta. So can I write sine theta is given as minus 1000 degree?
minus cos theta. So I'll again write cos and minus 1000 degree. Got my point clear? Now you know very well sine of negative angle is minus sine theta. Sine of minus theta is minus sine theta. So can I write it something like this? And minus we have cos theta. Okay, got this point? Why I made this sine minus sine theta? Because you have sine minus theta is minus sine theta, but cos minus theta is just cos theta, and this minus sign here of the equation. Clear with this? Okay. Then can I convert this 1000 as 3 into 360 minus 80? Will that work? कितने rotations आए हैं? So 3 rotations of 360, and to make it 1000 I'll minus 80. Okay. Then for cos also I'll make it like that. 3 into 360 minus 80. Now my dear kids, if you know very well that sine 2n pi plus theta, we have to take minus theta. 2n pi minus theta is minus sine theta. So this is minus here, और ये expression का sign will be minus sine 80. And then you have cos 2n pi minus theta, that is cos theta. So can I write cos 80? This minus minus becomes plus. So it is sine 80 minus cos 80. Sine 80 अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो इट विल बिकम cos 10, एंड cos 80 अगर 90 माइनस थीटा करेंगे, और 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है रेशियो का, सो विल कॉल इट एज sin 10. और क्या आपको पता है कि जब 0 to 90 डिग्री होता है, एट दैट टाइम फॉर द स्टार्टिंग 45 डिग्रीज cos increases, cos is greater than sine. For the 45 degrees, you will see that cos is greater than sine. मतलब cos पॉजिटिव है, तो मतलब हम लोग का एक्सप्रेशन पॉजिटिव में आएगा. अगर cos बड़ा है साइन से और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो naturally your answer will be positive. Getting my point? So hence this equation will have positive sign. This expression will have positive sign. Is that clear? Okay dear kids, now we'll take this problem. Let's see. The first part is done in my previous video, if you have noticed. I'll take with my second part, that is find the value of theta between 0 to 360 if your cos 3 theta is equal to half. Now I know that cos 3 theta is equal to half. Half कब होता है? Cos 60. So that means 3 theta is equal to 60. Getting my point? 3 एंगल्स मिलके 60 आ रहा है. सो थीटा विल बी इक्वल टू 20, मतलब डिवाइड बाय 3, इसका थर्ड हिस्सा, तो यहाँ पे 20. तो एक एंगल तो आपको समझ में आ गया कि भाई 3 थीटा मिलके 60 डिग्री है, तो एक थीटा हम लोग को 20 डिग्री आ गया यहाँ पे. ओके, एक एंगल हम लोग को ये चाहिए. अब दूसरा, वॉट एवर वैल्यू दिस विल हैव, सिमिलर वैल्यू यू विल हैव इट हियर. ठीक है, क्योंकि कॉस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है. यहाँ पे अगर एंगल 20 है तो यहाँ पे -20 मतलब 340 होगा. आ रही बात समझ में?
या अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज आई विल टेल यू। आपने ये 60 ले लिया, सो हियर विल बी व्हाट 360 माइनस 60 ऑन दिस साइड, ठीक है। दिस इज 60, दिस इज 300। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? 3 थीटा की। What do I want? I want theta. So I'll divide by 3. So I'll get it 20 degree and 100 degree. So 2 डिग्रीज तो आपके पास मिल गई कि 20 डिग्री पे और 100 डिग्री पे वैल्यू आपकी सेम आने वाली है। ओके, नाउ एक बात नोटिस करो यहाँ पे, इट इज से दैट थीटा इज इन बिटवीन 360 to 0 डिग्री। वो थीटा है, लेकिन इफ़ आई टेक 3 थीटा तो उसका रेंज तो ट्रिपल हो जाएगा ना, 360 का ट्रिपल, सो इट विल बी 1080। आई गेटिंग माई पॉइंट? आप थीटा की एक रेंज बना रहे हो, लेकिन 3 थीटा की रेंज उसकी ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे टू गेट दिस। मतलब आपका ये एक ही रोटेशन में एंगल्स नहीं आने वाले हैं, आपके 3 रोटेशंस आपको लेने पड़ेंगे। आपको 360 के 3 चक्कर काटने पड़ेंगे। लेट्स सी, आपके फर्स्ट चक्कर में यू गॉट दिस 60, जिसको आपने डिवाइड किया, सो यू गॉट दिस वैल्यू। यू गॉट दिस वैल्यू एंड यू गॉट हियर ऑल्सो। अब जैसे ये चक्कर 360 पे ख़त्म होता है, लेकिन मैंने आपको कहा था ये दूसरे चक्कर में भी आएगा बिकॉज 3 थीटा है, सो इसको 3 चक्कर 3 रोटेशंस लगेंगे। सो जैसे ये सेकेंड इसमें जाएगा तो आप क्या करोगे, 360 तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, प्लस 60 करोगे, तो इट विल बी 360 प्लस 60, दैट विल बी 420। लेकिन वो तो थीटा की वैल्यू है, 3 थीटा की वैल्यू हो गई ना 420, और आपको चाहिए थीटा की, तो डिवाइड बाय 3 कर दो। आ रही बात समझ में? तो जैसे ही आप डिवाइड बाय 3 करोगे तो यू विल गेट 140। So you got one angle as 140. So first angle was 20, your second angle was 100, your third angle was 140. ठीक है, क्लियर हो रही बात? ओके, देन यही एंगल अगर इस तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ओके, लेट दिस 360 का चक्रा कंप्लीट करते हैं। अब 360 का चक्रा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से ये शुरू हुआ है, 20 was my first angle. Okay, then I got 100 here on this side. Okay, then यहाँ पे भी एक वैल्यू आती है, let me check. ओके, तो ये एक चक्कर ख़त्म हो गया। अब जब दूसरा चक्कर आएगा, आई डोंट नो हाउ वेल यू आर गेटिंग माई पॉइंट क्लियर और नॉट। अब ये फर्स्ट चक्कर में आपके पास 3 एंगल्स आ गया, सो दैट इज़ 20, नहीं, फर्स्ट में आपके 20 एंड 100 एंड देन यू गॉट 140, 3 एंगल्स आपके आ गए। दैट वॉज, आपने एक रोटेशन की और दूसरे रोटेशन में 360 प्लस 60 करके डिवाइडेड बाय 3 किया। अब आपने 360 प्लस 60 किया तो 360 माइनस 60 भी करो, तो वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। 360 माइनस 60, 300 अपॉन 300, मतलब 3 एंगल्स आपके आ गए हैं। सेकंड रोटेशन कंप्लीट। थर्ड रोटेशन में आपको 720 प्लस 60, 720 माइनस 60 लेना है, सो दैट विल बी 720 प्लस 60, so you will get 780, you have to divide by 3, you will get one angle, that is 260, am I correct? And 720 minus 60 करो, so 720 minus 60, that will be, am I correct, 660, इसको डिवाइड बाय 3 करो, so you will get 220। आ रही बात समझ में? 3 चक्कर काटने हैं,
अच्छा, मैं थोड़ा सा इरेज करके आपको एक और छोटा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सिर्फ ध्यान उस पर देना है कि हम लोग को 3 थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। थीटा इज इक्वल टू हाफ देते तो थीटा 60 बन जाता। 3 थीटा इज इक्वल टू हाफ दिया है, मतलब हर बार तुमको जो भी थीटा मिल रहा है उसको डिवाइड बाय 3 करना है। इतना क्लियर है। सो फर्स्ट केस में मुझे ये तो पता है कि कॉस थीटा हाफ कब होता है, जब कॉस 60 होता है। तो फर्स्ट मुझे ये आ गया कि भाई 60 पे मेरा हाफ होता है, लेकिन यहाँ पे 3 थीटा मिल के हाफ बना रहे हैं, तो मतलब मुझे 60 का डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो आई गेट माई फर्स्ट एंगल इज 20। अब मुझे ये भी पता है दैट इन माई फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन कॉस इज पॉजिटिव। एम आई करेक्ट? तो फिर यहाँ पे आपने 60 लिया, तो यहाँ पे आपको 360 माइनस 60 दैट इज 300 पे आपको मिलने वाला है हाफ, लेकिन मुझे 3 थीटा 300 तो डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तो दैट इज 100। क्लियर? ये था फर्स्ट रोटेशन। अब सेकंड रोटेशन में क्या होगा? सेकंड रोटेशन विल स्टार्ट 360 चक्कर हो गया, यहाँ पे 60 और ये 300 था, लेकिन यहाँ पे अब 360 प्लस 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 60 और आपको डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? और यहाँ पे हो जाएगा what it will be, we have already done 360 minus 60. Clear? थर्ड रोटेशन में what you will get 720 plus 60 720 यहाँ पे ये एंगल बन रहा है प्लस 60, लेकिन ये 3 थीटा का एंगल बन रहा है डिग्री, सो यू हैव टू डिवाइड बाय 3 एंड हियर 720 माइनस 60 और डिवाइड बाय 3। अगर कंसेप्चुअली समझोगे ना बहुत ही बेसिक है, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो कि हम लोग कर क्या रहे हैं। सो 3 थीटा की वजह से मुझे 3 रोटेशंस करने पड़ रहे हैं। यूजुअली वी कंप्लीट आवर आंसर इन 1 रोटेशन ओनली बिकॉज ऑलवेज इट इज़ थीटा गिवन, बट इस बार हम लोग को 3 थीटा दिया हुआ है, मतलब उसका रेंज जो हम लोग 0 to 360 बोल रहे थे उसका रेंज बढ़ गया, क्योंकि एवरी टाइम आई एम डिवाइडिंग विथ 3, तो फॉर्चुनेटली आई एम गेटिंग ऑल द आंसर्स अंडर 360। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन रोटेशंस मुझे 3 लेने हैं। फर्स्ट रोटेशन 60/3, ठीक है, 300/3। सेकेंड रोटेशन में आप 360 प्लस 60 करोगे अपॉन 3। थर्ड रोटेशन में आप 720 प्लस 60/3, 720 माइनस 60/3। आ रही बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसमें आप ओके यू डू इट लाइक दैट, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज। क्लियर विद दिस? ओके, आई विल पैक अप हियर। गॉड ब्लेस।